Okay. Good evening, all of you. So today we are going to start our budget session. So अपन जानिथिबे जे hello. Yeah, good evening. Okay. So today we are going to start our budget session, and let's see what's there in the budget of 26-27. Now, before we dive into the budget, excuse me for a second, for a while. Sir, sound echo होची भितरे माने sound आसुची. Okay, before we dive into the budget, what's there in the budget of 26-27, let us first understand what do you mean. Let us first understand what do you mean by budget. See, budget, according to Article 266 of the Constitution, parliamentary approval is required to draw money from the Consolidated Fund of India. आपण माने जानिथिबे तीन प्रकार फंड अछि, गोटे होची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गोटे होची पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो जदी गवर्नमेंट को जदी गोटे पैसा भी विथड्रॉ करबा को चाहूची गवर्नमेंट, then the government requires the approval of the parliament. Government requires the approval of the parliament. Now, all revenue, देखो तो please, Article 266(1) says that all revenues received by the government of India shall form one fund called Consolidated Fund of India. Government जहाँ भी तार निजर revenue receive करे, government different sources रो तार revenue receive करे. For example, tax revenue हेगला किंबा non tax revenue हेगला, जेमिति अपन को fees हेगला, penalty हेगला, dividend हेगला. आउ government जहाँ भी loan नौची market to जहाँ भी loan नौची किंबा foreign financial international financial institutions रो जहाँ loan नौची से पैसा हेगला किंबा गवर्नमेंट सपोज गोटे कंट्री को लोन देइची आ से कंट्री से लोन टाको रीपे कर देला along with interest. All this constitutes the revenue of the government, and the revenue of the government directly goes into the Consolidated Fund of India. किंतु consolidated fund of India रो जदी government withdraw करिया को चाहूची even a single paisa, then it requires the parliamentary approval. Now the question is why is parliamentary approval required? कहीं पार्लियामेंटरी अप्रूवल कहीं दरकार पड़े. देखो तो ये दीटा कारण अच्छे, दीटा इंपॉर्टेंट. देयर आर टू सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर दैट. सी हियर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन माने कौन? जदि पार्लियामेंट रे जदि लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव्स बसी नाहंती, then the government has no right to collect taxes from the people. जदि गवर्नमेंट लोक मानक ठू पब्लिक ठू जदि टैक्स कलेक्ट करिया को चाहूची, then the people must be represented in parliament in terms of member of parliament. Fine. जदि आमको जदि पार्लियामेंट रे जणे जदि रिप्रेजेंट करूची जे कि हमर वॉइस टा पार्लियामेंट रे उठौची, then only the government has the right to tax people, or the government has the right to collect taxes from the people, and legislative control over the executive. The government parliamentary approval एथिपाई दरकार जहा द्वारा कि लेजिस्लेटिव रो कंट्रोल रहइबो एग्जीक्यूटिव ऊपर. ता माने गवर्नमेंट मन इच्छा पैसा खर्च करि परिबो नाही. कुछ सिंगल गोटे पैसा रो हिसाब देबाबो पडुची पार्लियामेंट को. काको देबाबो पडुची गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट गोटे पैसा रो हिसाब दिए पार्लियामेंट को, जे म एई पैसाटा एई सेक्टर रे खर्च करली, एई प्रोग्राम पे खर्च करली, काहे कि ना एटा लोक मानक पैसा, बुझि पारले. सो लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. ओके, इट लिखा है, देखो द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड पब्लिक मनी on its own. It must first take permission from the people's representatives, that is parliament. Now I got an important point आपण माने जानिबा दरकार. The word budget does not appear anywhere in the constitution. हमें वर्तमान एबे डिस्कस करूचे बजेट, किंतु the term budget, the word budget constitution रे कोठी भी मेंशन करा जाय नाही. Instead of the word budget, constitution रे कोन लिखा आइची? Constitution रे लिखा आइची annual financial statement. Budget, instead of the term budget लिखा है constitution रे कौन? annual financial statement.
and under article 112 एटा एग्जाम पर्सपेक्टिव टिके इंपोर्टेंट आपन को मन रखिया दरकार जे आर्टिकल 112 अंडर लिखा है कोन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जेतेबेले भी बजेट को प्रेजेंट करे सबु बेले गवर्नमेंट अपकम आसंता वर्ष पई गवर्नमेंट प्रेजेंट करे बजेट को for the upcoming year. Whenever the government presents the budget is presented for the upcoming year. तामाने गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दउची लोकन को जणाउची जे आसंता वर्ष आमे केते रेवेन्यू रिसीव करिवु, केते रेवेन्यू आमे कलेक्ट करिवु, आउ केते इनकम आमे केते रेवेन्यू रिसीव करिवु, आउ को सेक्टर्स रे आमे केते टंका खर्च करिवु. एटा एक्चुअली कोन एस्टिमेट गोटे. These are not actual figures. These are estimates of expenditure and receipts of the government. कहीं ना आसंता वर्ष गवर्नमेंट केते कलेक्ट करिवो, एक्यूरेटली केते कलेक्ट करिवो गवर्नमेंट को जणा नाही. सेति में गवर्नमेंट कोन करे बजेट रे गोटे एस्टिमेट प्रोवाइड करे. सेटा को कुहा जे कोन एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फेब्रुअरी 1 ऑफ फेब्रुअरी गवर्नमेंट बजेट को प्रेजेंट करला. किंतु आपण मान जानिथिबे जे 1 ऑफ फेब्रुअरी जो वर्तमान चालीची फाइनेंशियल ईयर, ए फाइनेंशियल ईयर ता चालीची को ईयर 25-26. तो गवर्नमेंट जो बजेट प्रेजेंट करला 1 ऑफ फेब्रुअरी रे से बजेट प्रेजेंट करला फॉर द ईयर 26-27. तमाने गवर्नमेंट कहूची जे आसंता वर्ष आमे एतिकी रेवेन्यू रिसीव करिवु आ डिफरेंट सेक्टर्स रे आमे एतिकी टंका खर्च करिवु. बुझ पारले? सो दिस स्टेटमेंट शोज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स and estimated expenditure of the government of India for that financial year. Fine. अब एटा होची स्ट्रक्चर. एटा देखो बजेट रा एटा प्रोसेस टा एटे लेखा हिचे आपण पॉलिटी रे पढिबे ए सब अंडर आर्टिकल 112 annual financial statement, under article 113 demand for grants, under article 114 appropriation bill. ए सब आपण पढिबे इंडियन पॉलिटी रे पढिबे. आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आपण जानिथिबे दरकार, that is within the Ministry of Finance. देखो within the Ministry of Finance there are different ministries. Department of Ministry of Finance, Home Ministry हेगला, Defense Ministry हेगला, there are different ministries, and within the Ministry of Finance the budget division of the Department of Economic Affairs. देखो under the Ministry of Finance under the different departments थाए. फॉर एग्जांपल जेमिति आपण हेगला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हेगला, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हेगला, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हेगला, एमिति डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अछि. गोटे डिपार्टमेंट अछि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ए डिपार्टमेंट अंडर रे गोटे डिवीजन अछि जाको कुहा जाय कोन बजेट डिवीजन. जा कुहा जाय बजेट डिवीजन. एक्चुअली बजेट डिवीजन ता एक्चुअली बजेट को प्रिपेयर करे हला. एंड बजेट डिवीजन इज द नोडल एजेंसी, इज द नोडल बॉडी फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजेट. Nodal simply means the central coordinating authority. Fine. ये गोटे पॉइंट आपको मन रखथिबे. Now let's come to the budget of 26-27. देखो लेखा हिची the 26-27 budget is a युवा शक्ति driven budget. ता माने होची ए जो बजेट प्रेजेंट करा हिची ए बजेट रो हमको गवर्नमेंट कोन इंफॉर्मेशन दउची. त गवर्नमेंट चाहूची केमिति इंडिया रो जो यूथ अछंती, जो इंडिया रो यूथ अछंती, यूथ मानकर पावर को केमिति अनलॉक करा जाय परिबो, तांको पोटेंशियल को केमिति अनलॉक करा जाय परिबो. बुझि पारले? सो दिस इज अ युवा शक्ति ड्रिवन बजेट. ओके, दैट मींस द बजेट इज स्पेशली टेल्स अस हाउ टू अनलॉक द पावर ऑफ द यूथ. सो गवर्नमेंट गोटे संकल्प नेछि. संकल्प माने कोन? संकल्प मीन्स कमिटमेंट. गवर्नमेंट संकल्प मीन्स कमिटमेंट. The government's commitment is to focus on the poor, underprivileged and disadvantaged sections of the society. तो एटा होची गवर्नमेंट रो कमिटमेंट. ए जो कमिटमेंट को फुलफिल करिवा पई, व्हाट इज द कमिटमेंट? टू फोकस ऑन द पोर, अंडरप्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड. ओके, ए कमिटमेंट को फुलफिल करिवा पई गवर्नमेंट तीनटा कर्तव्य अछि. गवर्नमेंट कहूची जे मोर तीनटा ड्यूटी, मोर तीनटा कर्तव्य अछि. से कर्तव्य को जदि मु पूरा करि पाउची, देन आई विल बी एबल टू अनलॉक द पावर ऑफ यूथ as well as my commitment will be fulfilled. Okay, what are the कर्तव्यस? देखंतु तीनटा ड्यूटीज. कर्तव्य मींस तीनटा ड्यूटीज.
See here the three different kartavyas or duties. See here the first kartavya is accelerate and sustain economic growth. आम डिस्कस करिया गोटे गोटे करिकी. The first kartavya is accelerate and sustain economic growth. The second kartavya is fulfill aspirations of our people, and the third kartavya is vision of सबका साथ and सबका विकास. Now let us understand each kartavya one by one. देखो see here Union Budget 26-27 described as Yuva Shakti driven budget and structured around three kartavyas. Yuva Shakti driven budget means what? Yuva Shakti means the power of the youth. So India has one of the youngest populations. आप लोग जानी थे India has one of the youngest populations in the world, and a youth driven budget implies ये जो लिखा है युवा शक्ति driven budget या माने कौन? What does it mean? या माने होची a youth driven budget simply means एजुकेशन रो क्वालिटी को इंप्रूव करबा ऊपर फोकस करबा को पड़िबो, स्किल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करबा को पड़िबो, जॉब क्रिएशन ऊपर फोकस करबा को पड़िबो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करबा ऊपर फोकस करबा को पड़िबो, इनोवेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी and productive demographic dividend. So the overall idea is that India's growth engine is its young population. India's growth engine is its young population. The young population मानकर potential को यदि हमको unlock करिवार अछि, then we have to focus on improving the quality of education. We have to focus on enhancing the skill of the people. We have to focus on job creation, entrepreneurship and startups. We have to focus on innovation and digital economy. Okay. So this Yuva Shakti driven budget money here, and government's sankalp देखो commitment. Sankalp simply means resolve or commitment. Here is the resolve. कौन commitment हम already देखिले, to focus on the poor, underprivileged and disadvantaged. देखो या माने कौन actually? This indicates this government's sankalp, this government's commitment indicates a pro-poor and inclusive orientation. A pro-poor and inclusive orientation. It aligns with the constitutional values of social justice under the Constitution of India, especially the directive principles of state policy. It is a lekha ichi pro-poor and inclusive orientation. या माने कौन? What does it mean? देखो तो actually वर्तमान आज का डेट रे हमर जो ग्रोथ मॉडल अछि, ग्रोथ मॉडल से ग्रोथ मॉडल ता होची इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल. इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल पूर्वरु जो ग्रोथ मॉडल चलथिला ताको कुआ जाय कोन ट्रिकल डाउन ग्रोथ मॉडल. अंडर ट्रिकल डाउन ग्रोथ मॉडल कोन होतला एक्चुअली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रिकल डाउन ग्रोथ मॉडल रे कोन होतला, एटा गोटे पिरामिड. गवर्नमेंट सबु बेले टॉप रे फोकस करथला. अंडर ट्रिकल डाउन ग्रोथ मॉडल रे कोन होतला, गवर्नमेंट सबु बेले टॉप रे फोकस करथला. टॉप रे के रहउतले, कैपिटलिस्ट माने रहउतले, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट माने रहउतले. तो गवर्नमेंट सबु बेले टॉप रे फोकस करथला. तो टॉप रो जहां भी गवर्नमेंट को इनकम रेवेन्यू आसे, टॉप माने टॉप जो कैपिटलिस्ट माने अछंती से माने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके किछि इनकम अर्न करिवे. इनकम अर्न कला माने गवर्नमेंट को टैक्स देबे. तो गवर्नमेंट को पाखो को जहां भी रेवेन्यू आस्तला, गवर्नमेंट से रेवेन्यू टा जो लोक माने बॉटम रे अछंती सेमानंगर अपलिफ्टमेंट पई हो किबा डेवलपमेंट पई एक्चुअली खर्च करथला पैसाटा. बुझ पाले याकू हुआ जा कोन ट्रिकल डाउन ग्रोथ थ्योरी. ट्रिकल डाउन तो डेवलपमेंट केवल ऊपर होउची टॉप रे होउची, आ से डेवलपमेंट रू से डेवलपमेंट एक्चुअली तळको कोन करूची ट्रिकल डाउन करूची. बुझ पाले ता माने गवर्नमेंट कोन करथला, सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करथला, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करथला, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करथला, हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करथला. तो गवर्नमेंट पाखो को पैसा कोठु आसे ए सब फ्रीबीज प्रोवाइड करिया पई, एठु आसे गवर्नमेंट एठु पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करे, सेही पैसा रे डेवलपमेंट पई चेष्टा करे कहार जो माने बॉटम रे रहउचंती. बुझ पाले याको कहा जा कोन ट्रिकल डाउन ग्रोथ मॉडल. किंतु बॉटम रे जो लोक माने अछंती जदी आमे तांको जदी केवल फ्रीबीज प्रोवाइड करिवा ताले से माने कोन हे जिवे ओनली पैसिव बेनिफिशियरीज. से माने इकोनॉमी को कोनसी प्रकार एक्टिव कंट्रीब्यूशन तांकर नाही, से माने केवल फ्रीबीज पाउचंती कहा टू गवर्नमेंट टू, सेति पई से माने कोन हे गेले पैसिव बेनिफिशियरीज. गवर्नमेंट कहला the people who are at the bottom of the society, they shouldn't remain as passive beneficiaries. They must contribute to economic activity. ता माने होउची कोन, they must actively participate in the economic activities of the country. Fine. तो सेति पई कोन करा गला, गवर्नमेंट फोकस कला किमिति आमे तांको स्किल प्रोवाइड करि परिबा, किमिति क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करि परिबा, किमिति क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करि परिबा, जहा द्वारा कि जो बॉटम रे जो माने अछंती सेमाने भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करिवे टू इकोनॉमिक एक्टिविटी. फाइन. ए जो इकोनॉमिक जो प्रो पोर एंड इंक्लूसिव ओरिएंटेशन रो माने होउची से ता माने समस्त को पार्टिसिपेट करबा दरकार कोथरे इकोनॉमिक एक्टिविटी रे. कोनसी लोक नॉट ए सिंगल पर्सन शुड रिमेन
a passive beneficiary. Fine. Okay, ता माने होची सेटा. So this is what does it mean? So this indicates a pro-poor and inclusive orientation. It aligns with constitutional values of social justice under the Constitution of India. Fine. एटा होची government रो commitment. Fine. Now तापर देखो the three कर्तव्यस. What do you mean by the three कर्तव्यस? देखो the three कर्तव्य. कर्तव्य means duty. First कर्तव्य कौन? What is the first कर्तव्य? First कर्तव्य देखो accelerate and sustain economic growth. Accelerate and sustain economic growth. ये जो लिखा है accelerate and sustain economic growth ता माने कौन? ग्रोथ रेट को बढ़ेवा ग्रोथ रेट को इंक्रीज करेवा. सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ माने जदि सपोज ग्रोथ रेट आम इकोनॉमी 10% रेट रे ग्रो करूची, आम इकोनॉमी 10% रेट रे ग्रो करूची, ताहले आमे से 10% रेट को 10% ग्रोथ रेट को किमिति सस्टेन करै परिबा. बुझ पारले माने नुहे जे सपोज गवर्नमेंट कोन कहया चाहूची the growth rate should not be volatile. तामाने आज ए वर्ष आमे 10% रेट रे ग्रो करलु, पुनी नेक्स्ट ईयर सपोज ग्रोथ रेट ता कमी की हे गेला 3%, ता पर वर्ष पुनी आउतरे हे गेला 7%, ता पर वर्ष पुनी आउतरे हे गेला 2%. फाइन. सो इमिति न हे कि आमे ग्रोथ रेट को इंक्रीज करबा पई चेष्टा करबा. सपोज 10% रेट रे जदी इकोनॉमी ग्रो करूची ताले 10% रेट रे ही 10% रेट ता किमिति स्टेबल रहइबो ता ऊपर आमे फोकस करबा. दैट इज द एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ माने होची से. That means this is about maintaining high GDP growth rate in a stable manner. तो growth rate जिमदी stable रहिबो. तो growth rate बढ़ेबा को growth rate actually बढ़ेबा को increase करेबा पई आ stable रखिबा पई कोन करिबा पई पड़िबो. देखो तो कोन करिबा पई पड़िबो. First of all you have to enhance productivity and competitiveness. ताले productivity को आपण किमिति enhance करि परिबे, competitiveness को किमिति enhance करि परिबे by improving manufacturing efficiency. आपण एट जो लिखा है एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ताले प्रोडक्टिविटी को किमिति इंप्रूव करिवे, किमिति एनहांस करि परिवे, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी को किमिति एनहांस करि परिवे, किमिति करि परिवे बाय इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी. जदि मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी जदि बढ़ुची ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमिबो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमिले कोन हबो, जहां भी प्रोडक्ट्स आमे तयारी करछे मैन्युफैक्चर करछे द प्रोडक्ट्स वुड बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. फाइन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हबो. सपोर्ट एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. गोटे वे कहले जदि गोटे दृष्टि कहले गोटे दृष्टि जदि आमे देखिबा आमे एमएसएमईज को भी गोटे ग्रोथ इंजन बोली कहि परिबा, इंडिया रो ग्रोथ इंजन बोली कहि परिबा. बुझ पाले काना अबे काना बहुत संख्या रे जो वर्कफोर्स अछि एमएसएमईज रे एंगेज अछंती. सो एमएसएमईज को भी सपोर्ट करिबा बुझ पाले. तो तापर प्रमोट इनोवेशन जदि इनोवेशन को आमे फोकस करूचे ताले कोन हो आमे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करि परिबा. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होला माने मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़िबो. मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ला माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो. फाइन. एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट्स जदि आमे बढ़ेबा ताले आमे कोन अर्न करि परिबा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करि परिबा. फाइन. देन इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जदि आमे बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करूचे ताले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसी रु बेसी कंट्री को आसीबो. फाइन. So this is how you increase your productivity, enhance your productivity and competitiveness. Then building resilience to volatile global dynamics. जो एटी लिखा है हमरो enhancing productivity and competitiveness. एई productivity this is accelerate and sustain economic growth. आमे किमिति ग्रोथ को बॉडी इंक्रीज करेबा आ किमिति सस्टेन करे परिबा. गोटे होची कोन गोटे वे होची गोटे रास्ता होची प्रोडक्टिविटी को एनहांस करिबा आ कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करिबा. Then another way is हाउ गोटे रास्ता होची बिल्डिंग रिजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स. या माने कोन देखंतु एबे वर्ल्ड इकोनॉमी फेसेस व्हाट द वर्ल्ड इकोनॉमी फेसेस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हे गला. तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो कोन एक्चुअली होची सप्लाई चेन डिसरप्शंस होची. ता माने देखंतु जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलीची फॉर एग्जांपल जेमिति इंडिया अमेरिका भितरे टैरिफ्स को नै कि जो वर्तमान प्रॉब्लम चलीची किंबा रशिया यूक्रेन वॉर चलीची बुझ पारले जो मिडिल ईस्ट जो प्रॉब्लम्स गुडा को चलीची. तो ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो कौन हुए ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए. तामाने सपोज आमे गोटे कंट्री टू जदी किछि इंपोर्ट करूचे किछि रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करूचे जोटा कि इंडिया रे प्रोड्यूस होनी ताले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हुए तो हेई पारे जे आमे से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट हुए तो करि परिबानी किंबा रॉ मटेरियल्स रो कॉस्ट ता बढ़ी जिवो बुझ पारले. तो ये सब कौन हुए ये सब हमरो प्रोडक्शन को अफेक्ट करे. आमे कौन करूचे आमे जेहेतु गोटे अन्य गोटे फॉरेन कंट्री ऊपर डिपेंडेंट अच्छे तो सेही पर्टिकुलर रीजन रे जदी किछि भी टेंशन्स हला जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अराइज हला ताले हमर कंट्री रे विदिन आवर डोमेस्टिक कंट्री विदिन आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रोडक्शन ता अफेक्ट हबो. बुझ पाछन प्रोडक्शन ता अफेक्ट हला माने कोन हबो लोक माने भी अफेक्ट हबे, जॉब क्रिएशन हे परिबोनी, तापर हम एक्सपोर्ट भी करि परिबोनी. फाइन.
तो यही सब जो वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ इज फेसिंग व्हाट जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, तो आमे केमिति निजको रिजिलिएंट करि परिबा, बुझि पारले ए जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस रो आमे निजको केमिति रिजिलिएंट करि परिबा टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। देखंतो प्लीज सी हियर केमिति करि परिबा। देखंतो हमकु प्रथमे सी हियर जस्ट अ मिनट सी हमकु प्रथमे स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करिया पड़ो, बुझि पारले जदी आमे गोटे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिकी बाहर एक्सपोर्ट करूचे किंतु गोटे पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो प्रॉब्लम कोन से आमे एक्सपोर्ट आउ करि परने काने से रीजन रे प्रॉब्लम चलीची, ताले जदी हमर डोमेस्टिक डिमांड ता जदी स्ट्रांग थिबो ताले आमे एक्सपोर्ट जदी बाहर को एक्सपोर्ट न करि पारले भी आमे डोमेस्टिक इकोनॉमी रे सेही प्रोडक्ट्स टाको सेल करि परिबा, बुझि पारले जा द्वारा कि प्रोडक्शन अफेक्ट होबो नाही, जॉब क्रिएशन अफेक्ट होबो नाही। सेकंड होउची डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनर्स। डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनर्स कहीं जदि आम पाखे आम जदि केवल गोटे गोटे दीटा तीनटा कंट्री सहित ट्रेड करूचे, जदि किसी भी प्रॉब्लम से रीजन रे हुए ताले आमे हुए तो आम एक्सपोर्ट हो गला इंपोर्ट हो गला अफेक्ट हम। जदि आमे आम ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई कर दोचे, गोटे दीटा कंट्री नुहे पाखापाखि अन्य कंट्री मान सहित आम ट्रेड डील साइन करुचे, एक्सपोर्ट करुचे, इंपोर्ट करुचे, ताले गोटे पर्टिकुलर रीजन रे किसी प्रॉब्लम हेले भी आमे अन्य कंट्रीज तो आमे सहायता नहीं परिबा किबा सेमान को एक्सपोर्ट करि परिबा किबा सेमान को इंपोर्ट करि परिबा, तार उद्देश्य सेम। एनर्जी सिक्योरिटी हे गला, फिस्कल प्रूडेंस हे गला। फिस्कल प्रूडेंस माने सिंपली माने हम लास्ट को डिस्कस करिवा व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल प्रूडेंस। So this kartavya is about macroeconomic stability plus sustained economic growth. The second kartavya is fulfill aspirations of our people. Fulfill aspirations of our people. कोन लोक मानकर aspirations कोन? लोक मानकर aspirations होउची से माने पाठ पढिले तापर गोटे भलो जॉब तांको मिलु, बुझ पाले जॉब मिलला माने भलो सैलरी मिलिबो, से तांकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोन अपलिफ्ट करि परिबे। एटा ही तो कॉमन लोक मानकर aspirations कोन? एया ही aspirations। तो देखंतु तो हमें जदि लोक मानकर एस्पिरेशंस को फुलफिल करिया को चाहूचे then we must focus on we have to first of all we have to build people's capacity। हमको लोक मानकर कैपेसिटी को बढ़ावा को पड़िबो, we have to build people's capacity। तो लोक मानकर कैपेसिटी किमिति बिल्ड करि परिबा किबा किमिति इंक्रीज करि परिबा, आपन को एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स आनिया को पड़िबो। सिंपली कहले you have to improve the quality of education। You have to focus on providing skills to the people। Skill development ऊपर focus करिया को पड़िबो। Health infrastructure, health services, you have to focus on improving the quality of health services provided to the people। Digital inclusion ऊपर focus करिया को पड़िबो। And overall ए सब जदि आपण करिवे then this improves what? Human capital। This improves human capital। Now making them strong partners in India's prosperity। Making them strong partners in India's prosperity। तो मु आपन जो कहितली कि समय पूर्व इंक्लूसिव ओरिएंटेशन मतलब इंक्लूसिव ओरिएंटेशन, तो किमिति से माने आमे किमिति समस्त जो सबका साथ सबका विकास, तो किमिति आमे सेमान को आमे इंक्लूड करे परिबा so that they could contribute to economic activity। प्रथमे होची एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करंतु, सेमान को पई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करंतु, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कला माने सेमान चाकरी पाइबे, दे विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। तापरे एक्सेस टू क्रेडिट हे गेला, बुझ पारले, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा जाऊ, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ेवा दरकार, बुझ पारछंती, एंड रूरल एम्पावरमेंट भी करिवा को पड़िबो। सो दिस making them strong partners in India's prosperity। The idea citizens are not beneficiaries, they are partners। Citizens केवल beneficiaries नुहे, they must contribute to economic activity by participating in the economic activity। Fine। The third kartavya is vision of सबका साथ and सबका विकास। एटा सिंपली आ माने होची कोन सबका साथ सबका विकास माने केवल गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुहे, गोटे पर्टिकुलर स्टेट को नुहे किंबा गोटे किछिटा स्टेट गोटे पर्टिकुलर रीजन को नुहे, समस्तों को नहीं कि समस्त everyone, every state, every community and each and every section of the society must participate in the economic activity, must contribute to economic activity। They must become partners and shouldn't remain passive beneficiaries। ता माने होची सेम। So everyone's participation and development for all। Okay। So this implies what? This implies regional balance हे गला। Okay, गोटे पर्टिकुलर रीजन ऊपर फोकस करिवा नहे, प्रत्येक रीजन ऊपर फोकस करिवा दरकार, प्रत्येक कम्युनिटी ऊपर फोकस करिवा दरकार, जहा द्वारा कि समस्त पार्टिसिपेट करिवे इकोनॉमिक एक्टिविटी रे आ समस्त को डेवलपमेंट होबो। फाइन। सोशल इक्विटी हे गला, इंक्लूजन ऑफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, रूरल अर्बन पैरिटी जो अछि, रूरल अर्बन पैरिटी, अर्बन एरिया रे सब प्रकार सुविधा मिलुची जोटा कि रूरल एरिया रे मिलेनी,
तो आम से पैरिटी जो रूरल अर्बन पैरिटी अच्छी जो डिफरेंस अच्छी से डिफरेंस ताको भी हमको कमेवा को पड़िबो से एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज हला जेमति प्रत्येक लोक को मिनिमम बेसिक सर्विसेज जोगे देवा पड़ी जोगेवा को पड़िबो फाइन सो इटा ही सबका साथ सबका विकास माने इट सिंपली मींस दैट एंड नाउ लेट्स कम टू एबे देखंतु द की थ्री पिलर्स अपन बाकी गुडा को देखि देबे बुझ पाले सिंपल अछि नाउ लेट्स कम टू द की पिलर्स ऑफ देखंतु जो एंटायर बजेट अछि यूनियन बजेट एंटायर बजेट को 6 पिलर्स रे हमें डिवाइड करि परिबा 6 द एंटायर बजेट कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 पिलर्स फर्स्ट पिलर होची कोन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बुझबा या माने कोन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट पिलर होची सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड पिलर होची रीइंफोर्सिंग ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पिलर होची इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फोर्थ पिलर होची ट्रस्टवर्दी गवर्नेंस फिफ्थ पिलर होची एनहांस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सिक्स्थ पिलर होची sound fiscal management hello these are the entire budget has been divided into the these six pillars एबे गोटे गोटे पिलर को हम डिस्कस करके जिबा द फर्स्ट पिलर इज सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हेलो एन्श्योरिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेबल इंक्रीज इन जीडीपी जोटा हमें किछि समय पूर्व डिस्कस करले ताको डिटेल देखिबा देखंतु जदी हमकु इकोनॉमिक ग्रोथ को जदी ग्रोथ रेट को बढ़ेवार अछि इंक्रीज करेवार अछि आ ताको सस्टेन भी करेवार अछि देन गवर्नमेंट कहूची जे हमको मैन्युफैक्चरिंग ऊपर स्पेशली फोकस करबा को पड़िबो इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज टू सस्टेन जदि हम सस्टेन भी करबा को चाहूचे ग्रोथ रेट को हाई ग्रोथ रेट को ताले हमको मैन्युफैक्चरिंग ऊपर फोकस करबा को पड़िबो द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऊपर फोकस करबा को पड़िबो ता माने होची कोन मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को नेकी गवर्नमेंट कोन कहूची बजट रे देखंतु इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इस सब गुडा को हम डिस्कस करिवा वर्तमान धीरे धीरे बायोफार्मा शक्ति डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स ओके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रिवाइवल ऑफ लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन देखंतु एडी प्लीज सी हियर एडी देखंतु कोन कहूची इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 कौन कहूची एक्चुअली यार उद्देश्य कौन ये जो मिशन रो एक्चुअली कौन ऑब्जेक्टिव कौन ये मिशन रे ऑब्जेक्टिव कौन देखो तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 aims to promote the domestic production of semiconductor chips ये मिशन रो ऑब्जेक्टिव कौन जो सेमीकंडक्टर चिप्स अछि ये सेमीकंडक्टर चिप्स रो प्रोडक्शन हम डोमेस्टिक इकोनॉमी रे हवा दरकार बुझ पाले तारे सेटा ही ऑब्जेक्टिव देखंतु aims to promote domestic production of semiconductor chips as of now अपन जानी थिबे जे इंडिया एक्चुअली सेमीकंडक्टर चिप्स को बाहर इंपोर्ट करे बुझ पाले तो इंडिया चाहूची हमको जो फॉरेन कंट्रीज ऊपर जो हमें डिपेंडेंट हे कि अछु सेमीकंडक्टर चिप्स पई से डिपेंडेंसी ता हमको कमेवा को पड़िबो जदि डिपेंडेंसी कमेवार अछि देन वी हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस सेमीकंडक्टर चिप्स विद इन द कंट्री इटसेल्फ हला तार ऑब्जेक्टिव ए देखंतु व्हिच आर एसेंशियल कंपोनेंट जो सेमीकंडक्टर चिप्स अछि से गुडा को से चिप्स गुडा को कोथरे यूज हुए मोबाइल फोन्स रे यूज हुए लैपटॉप्स रे यूज हुए कार्स रे यूज हुए मेडिकल डिवाइसेस डिफेंस इक्विपमेंट रे यूज हुए फाइन तो जदी हमें ए सब चिप्स को जदी हमें इंडिया रे प्रोड्यूस करबा हमें निजे कंट्री रे प्रोड्यूस करबा इंस्टेड ऑफ बीइंग इंपोर्टेड इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैन फंक्शन स्मूथली इवन ड्यूरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स हलो जदी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जोगु जदी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट भी हे जाउची ताहले भी हमको असुविधा हबनी काहे कि ना हमें सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया रे प्रोड्यूस करछे ता हमें प्रोडक्शन अफेक्ट हबो नाही दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 तापर होची कोन द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स प्रोग्राम द रेयर अर्थ मिनरल्स जानिथिबे आपण रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स प्रोग्राम फोकसेस ऑन डेवलपिंग कैपेबिलिटीज इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेगला विंड टर्बाइन्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रो जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यूज होउची हलो सेगुडा को भी हमें विद इन इंडिया ही प्रोड्यूस करबा को चेष्टा करबा आज का डेट रे हमें इंडिया हेवीली डिपेंडेंट अछि अन्य कंट्री मानन को ऊपर कोन रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपोर्ट करबा रे फाइन सो वी हैव टू स्टार्ट माइनिंग एंड प्रोसेसिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स विद इन द कंट्री इटसेल्फ हलो एंड रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स काइना जोना ठीक नहीं फॉरेन जदी आपण को फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट अछंती जोना नहीं को मोमेंट रे कोन हबो बुझ पारले तो हम प्रोडक्शन ता अफेक्ट हबो बुझ परछन तो काहे ना जो रेयर अर्थ मिनरल्स अछि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रे यूज हुए इवन टर्बाइन्स रे यूज हुए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रे यूज हुए मेडिकल इंडस्ट्री रे यूज हुए डिफेंस इंडस्ट्री रे यूज हुए
तो जदि आम इंपोर्ट न करि परिबा जदि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जोगु देन आवर प्रोडक्शन आम प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन अफेक्ट हो सेति पई गवर्नमेंट कहूची आम माइनिंग भी निजे कंट्री रे करबा आ प्रोसेसिंग भी निजे कंट्री रे करबा फाइन एंड बायोफार्मा शक्ति देखंतु बायोफार्मा शक्ति supports innovation and manufacturing. Biopharma Shakti supports innovation and manufacturing in the pharmaceutical and biotechnology sectors. This strengthens the production of this supports innovation and manufacturing in the pharmaceutical and biotechnology sector. Biopharma Shakti एटा कहूची जे biopharma sector माने pharmaceutical sector और biotechnology sector रे कोन हवा दरकार innovation हवा दरकार उनको मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रेंथन करबा दरकार. This strengthens the production of vaccines, biosimilars and advanced medicines, similar to how domestic vaccine manufacturing helped meet healthcare needs during public health emergencies. Okay, जदि हमें फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर रे जदि हमें इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग जदि निजे कंट्री रे करबा तो एडवांस्ड मेडिसिन्स जो अछि एडवांस्ड मेडिसिन्स हे गला आपनकर वैक्सीन हे गला बायोसिमिलर्स हे गला जोटा कि हमें फॉरेन कंट्री रो इंपोर्ट करू ताले से इंपोर्ट ऊपर हमर डिपेंडेंसीटा कमिबो फाइन जेमिति कि पैंडेमिक बेलू जमी कोरोना बेलू कौन इंडिया मैन्युफैक्चर तो कला कोरोना वैक्सीन्स किंतु ता सहित अन्य कंट्री भी इंपोर्ट करने पड़ला इंडिया को फाइन. सो दिस बायोफार्मा शक्ति ऑब्जेक्टिव होची कौन ऑब्जेक्टिव होची जो फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स रे इनोवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग. एटी देखंतु बायोसिमिलर्स लिखा है कौन बायोसिमिलर्स माने कौन वैक्सीन्स माने आपण जानि थिबे एडवांस्ड मेडिसिन्स भी गोटे दृष्टि आपण माने बुझी परथबे. बायोसिमिलर्स माने कौन एक्चुअली बायोसिमिलर्स देखंतु सपोज गोटे पेटेंटेड ड्रग अच्छी गोटे पेटेंटेड मेडिसिन अच्छी से पेटेंटेड मेडिसिन रो किसी गोटे केमिकल कंपोजिशन थिबो तमाने किसी केमिकल्स को कंपोज करिकी से मेडिसिन को तैयारी करा जाइथिबो मैन्युफैक्चर करा जाइथिबो. जदि गोटे कंट्री सेम केमिकल कंपोजिशन को यूज करिकी से ड्रग टा प्रोड्यूस करूची सेम केमिकल कंपोजिशन को यूज करके जदि से ड्रग टा प्रोड्यूस करूची मैन्युफैक्चर करूची ताले हमें ताको कौन कहू जेनेरिक मेडिसिन हला. तो जेनेरिक मेडिसिन कौन जेनेरिक मेडिसिन्स आर एग्जैक्टली द सेम कॉपी जेनेरिक मेडिसिन्स आर एग्जैक्टली द सेम कॉपी ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन जो ड्रग अच्छी मेडिसिन अच्छी जार पेटेंट है जार पेटेंट कराई तो सेम मेडिसिन जहाँ भी केमिकल कंपोजिशन अच्छी जेनेरिक मेडिसिन भी सेम केमिकल कंपोजिशन को यूज करके से ड्रग टा मैन्युफैक्चर करा जाए. किंतु बायोसिमिलर्स केस रे कौन हुए बायोसिमिलर्स एक्चुअली देखो टेक्निकल अच्छी बायोसिमिलर्स एक्चुअली सेम केमिकल बायोसिमिलर्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन. बायोसिमिलर्स आई रिपीट बायोसिमिलर्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स. कहीं ना बायोसिमिलर्स लिविंग सेल्स को यूज करके मैन्युफैक्चर करा जाए. लिविंग सेल्स आपण जानी थिबे लिविंग सेल्स केबे भी सेम हे परिबे नहीं. ओके लिविंग सेल्स केबे भी सेम हे परिबे नहीं. तो लिविंग सेल्स को यूज करके गोटे प्रकार रो लिविंग सेल्स को यूज करके गोटे पेटेंटेड ड्रग को मैन्युफैक्चर करा हिची आ गोटे प्रकार लिविंग सेल को यूज करके सेम मेडिसिन मैन्युफैक्चर करा हबो बट बोथ आर डिफरेंट both are similar but not same. कहीं ना तार लिविंग सेल अलगा यार लिविंग सेल अलगा ताको कहा जाए कौन बायोसिमिलर किंतु इफेक्ट सेम दबो. जदि ए पेटेंटेड मेडिसिन ता जदि कैंसर को ट्रीटमेंट करिवारे जदि यूज करा जाउची तले ए मेडिसिन ता भी कैंसर को कैंसर ट्रीटमेंट करिया पे यूज करा हबो बट दे डू नॉट हैव द सेम chemical composition. Why? Because they are manufactured by using what living cells. Fine सेति पे आको कहा जाए बायोसिमिलर्स. Now, the establishment of high-tech tool rooms in CPSC माने Central Public Sector Enterprises improves precision manufacturing and skill development. Okay, high-tech tool rooms गुड़ा को भी तैयारी कराबो, construct कराबो. कोतरे CP Central Public Sector Enterprises रे which will improve precision manufacturing and skill development. For example, advanced tool room helps small manufacturing producers high quality machine parts used in automobiles and aerospace industries. Okay, next dedicated chemical parks. देखो तू बजट रे कुहाई जे आमे chemical parks गुडा को establish करिवा किमा construct करिवा काहे की chemical parks को construct करा जिवो
so as to enhance domestic production of chemicals and reduce import dependence ହେଲା import ऊपर तो overall manufacturing रो objective होउचे एया जहाँ जो important goods गुड़ा को बहुत critical goods गुड़ा को हमें बाहर import करूँ से गुड़ा को budget रे कुहा जे से goods गुड़ा को हमें within the country हमें country भीतर ही manufacture करिवा आरंभ करिवा बुझ पाले manufacturing करिवा को चेष्टा करिवा ओके सो से गुड़ा को chemicals हे जाऊ किंबा से गुड़ा को semiconductor chips हे जाऊ किंबा से गुड़ा को different electronic components हो fine जहाँ भी हो चुकी so chemical parks what chemical parks enhances domestic production of chemicals and reduce import dependence for instance chemicals जो chemicals गुड़ा को fertilizers रे use हुए medicines रे use हुए plastics रे use हुए हमें same medicines गुड़ा को actually बाहर import करूँ foreign countries रे import करूँ तो सेति पाए हमें यही chemicals गुड़ा को हमें within the country ही produce करिवा एटा होची objective chemical parks then integrated textile program रो objective कोन देखंतु it aims to its objective is to modernize textile manufacturing by supporting advanced machinery and value addition okay this helps increase exports of garments and technical textiles such as medical fabrics and industrial materials technical textiles देखो technical textiles लिखा है तो integrated textile program रो कौन objective कौन जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आवरी मॉडर्नाइज करिवा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करिवा भाई बाय सपोर्टिंग व्हाट एडवांस्ड मशीनरी एंड वैल्यू एडिशन ओके वैल्यू एडिशन को बढ़ेबा अब एडवांस मशीनरी किंबा आपण कहि परिबे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करिकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्नाइज करिवा जहा द्वारा कि हमें बेसी रु बेसी वैल्यू ऑफ गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करि परिबा एज वेल एज टेक्निकल टेक्सटाइल्स such as medical fabrics and industrial material technical textile माने देखंतु दी प्रकार टेक्सटाइल थाए गोटे होची नॉर्मल गोटे रेगुलर टेक्सटाइल जोटा हमें माने पिंदु जोटा हमें यूज करू फॉर एग्जांपल ड्रेस हे गेला विंडो क्लोथ हे गेला जहां भी बेडशीट हे गेला जहां भी आ गोटे प्रकार टेक्सटाइल अछि जहां कुहा जाय कोन टेक्निकल टेक्सटाइल फॉर एग्जांपल आपण जानि थिबे जो फायर फाइटर्स माने जो यूनिफॉर्म पिंधंती बुझ पारले जोटा की फायर प्रूफ थाए that kind of textile is technical textile बुझ पारले आउ different types of technical textiles अछि जोडा को actually industries रे यूज हुए सेगुडा को हमें technical textiles को कहू सेगुडा को actually माने हमें लोक माने यूज कंज्यूमर्स माने यूज करंतनी such textiles are used in industries fine industries रे यूज हुए technical textiles the electronics components manufacturing scheme encourages production of what components like circuit boards and display units when these parts are made locally domestically smartphone and consumer electronics manufacturing becomes more cost effective and competitive okay so ए सब steps नहीं आई चिंग माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को strengthen करिवा पई ए सब different steps नहीं आई छि बाकी गुडा को भी आपण देखि देबे स्पोर्ट्स सेक्टर देखंतो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव भी आरंभ करिया को जाउची गवर्नमेंट बजट में मेंशन करची स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन कोठी हबो इंडिया रे ही हबो सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ affordable and high quality sports equipment such as footballs cricket bats athletic gear hello and this will not only promote exports but also supports grassroots sports development okay तो sports equipment गुडा को बहुत expensive था okay तो से गुडा को जदी हमें affordable price रे जदी हमें affordable cost जदी manufacture करि परिबा as well as maintaining the quality of the products ताले हम exports भी हमें increase करि परिबा तो grassroots level रे sports को भी sports रो development पाई भी सहाय्य करिबा फाइन then the container manufacturing promotion scheme okay container manufacturing promotion scheme कंटेनर मान तो आपण जानि थिबे कंटेनर माने कोन जो कंटेनर्स रे गुड्स को रखी की एक्चुअली एक्सपोर्ट करा जाए बुझ पारले से जो कंटेनर्स जो शिप्स रे जो कंटेनर्स गुडा को यूज हुए से कंटेनर्स को हमें इंडिया रे ही मैन्युफैक्चर करिबा एनकरेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ शिपिंग कंटेनर्स चलो शिपिंग कंटेनर्स को हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिबा व्हिच आर क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स सो दीस आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट मैन्युफैक्चरिंग ओके एबे देखंतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आहुरी बूस्ट करिवा पई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आहुरी स्ट्रेंथन करिवा पई बूस्ट करिवा पई गवर्नमेंट कोन करछि किछिटा टैक्स रिफॉर्म्स नै कि आछि जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आहुरी बूस्ट करिवो आहुरी स्ट्रेंथन करिवो देखंतु कोन कोन लिखा छि एठी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करबा पई किबा एनहांस करबा पई स्ट्रेंथन करबा पई देखंतु कोन लिखा हिची 5-year income tax exemption 5-year income tax exemption 5-year income tax exemption for non-residents supplying capital goods, equipment or tooling to any tool manufacturer in a bonded zone. Salam. ये सब माने बुझिवा धीरे धीरे. Okay. First of all, let me read it out. Safe harbor provision for non-residents for component warehousing in bonded warehouses, deferred duty payment window to trusted manufacturers, increasing duty-free import limits from 1% to 3% of previous years export turnover. So gote gote kariki bujhiva kon actually what are the different types of what are the different tax reforms the government is going to introduce so as to boost manufacturing sector. Okay, let's see. देखो लिखा है कौन एग्जांपल सहित बुझिबा गोटे गोटे एग्जांपल सहित देखले माने आपण बुझि परिबे कोन लिखा है कोन एक्चुअली गवर्नमेंट कहया चाहूची. See, first of all, there is a 5-year income tax exemption. First of all, there is a 5-year income tax exemption for foreign companies that supply machines or equipment to factories, to Indian factories working in bonded zones. A bonded zone माने कौन? A bonded zone is a special area. A bonded zone is a special area where imported goods can be stored or used without immediately paying customs duty. गोटे bonded zone होता है, गोटे bonded zone. से bonded zone is a special area where imported goods can be stored or used without immediately paying customs duty. एबे देखो तो example अच्छी है. Please see the example. Imagine a foreign company from Germany supplies advanced robotic machines to an Indian car factory in a bonded zone. ये जो इंडियन कार फैक्ट्री टा अच्छी एटा को जोन रे अच्छी बॉन्डेड जोन रे अच्छी. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर इंडियन फैक्ट्री जो बॉन्डेड जोन रे अच्छी ए इंडियन कार फैक्ट्री को जर्मनी गोटे जर्मन कंपनी कौन कला गोटे एडवांस्ड रोबोटिक मशीन कौन कला सप्लाई कला. फाइन. तो आगुरु कौन होतला जो इंडियन फैक्ट्रीज माने बॉन्डेड जोन रे थिले आउ जदि से माने गोटे फॉरेन कंपनी टू किछि भी मशीन्स को इंपोर्ट करूथले आगुरु कौन होतला. Earlier, the German company had to pay income tax in India on that income. ता माने जदि गोटे जर्मन कंपनी इंडियन कार फैक्ट्री को जदि किछि मशीन्स सप्लाई करूची ताल किछि तो अर्न करिवो किछि इनकम अर्न करिवो. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करूथला से इनकम ऊपर टैक्स लेवी कर दोथला. बुझि पारले टैक्स लेवी कर दोथला. किंतु वर्तमान गवर्नमेंट कौन कहिछि 5 years 5 वर्ष पर्यंत now for 5 years it does not have to pay any tax. बुझि पारले. तो वर्तमान से फॉरेन कंपनी को 5 वर्ष जाए कौन सी प्रकार टैक्स दबा दरकार नहीं. से सिंपली जेति की इनकम करूची एंटायर इनकम को सीए ता कंट्री को ट्रांसफर करे परिबो विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा एज टैक्स. तो एटा सुविधा हला समान को पई सेमान भी वर्तमान राजी होबे. दे वुड बी मोर विलिंग नाउ टू सप्लाई एडवांस्ड मशीन्स टू इंडियन फैक्ट्रीज. फाइन. So because of this benefit, foreign companies are from now onwards would be more willing to supply advanced technology to Indian factories. तो आगरू टैक्स जेतु लागुतला तो foreign companies माने hesitate करथले जे नहीं जदि Indian factories को जदि हमें machine supply करिवा then we have to pay tax. तो माने alternative countries को export करथले किंबा sell करथले advanced machines. Fine. From now onwards 5 वर्ष जाए से companies को कौन सी प्रकार टैक्स दबा दरकार नहीं. Okay. Second कौन कुहाइची. Second कुहाइची there is something called a safe harbor provision for foreign companies. Safe harbor provision for foreign companies. So what does it mean? See here, earlier देखो there is something called as safe harbor provision for foreign companies that store components in bonded warehouses. Earlier, foreign companies worried that Indian tax authorities might say they are doing business in India and charge extra tax. Now the rules are clear. For example, if a Japanese electronics company stores mobile phone parts in Indian bonded warehouse before sending them to a factory, it will not face unexpected tax disputes. This gives confidence to global companies. तो होतला कौन देखंतु गोटे कंपनी ता गुड्स को नहीं कि आसिला इंडिया को
बॉन्डेड जोन रे एक्चुअली बॉन्डेड जोन रे किछि वेयर हाउसेस थाए जो वेयर हाउसेस रे गुड्स को स्टोर करके रखा हुए बॉन्डेड जोन रे वेयर हाउसेस थाए जाको कहा जाए बॉन्डेड वेयर हाउसेस तो से वेयर हाउसेस रे फॉरेन कंपनीज माने तांको गुड्स को स्टोर करके रखंती कहीं रखंती कहीं ना से इंडियन कंपनीज को सेल करि परिबे बुझि परले तो जेतो आगुरु होतला कोन जेतो से सेल करूथले मशीन्स को किंबा पार्ट्स को गुड्स को तो से इनकम ऊपर टैक्स तो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट लगाउथला एबे आ 5 वर्ष जाय लागिबो नाही किंतु ता सहित जदि से वेयर हाउस रे जदि गुड्स को स्टोर करके रखुतले तो इंडियन टैक्स अथॉरिटी गोटे एलिगेशन आणुतले तांको अगेंस्ट जे आपण जेहेतु आपण गुड्स को एई वेयर हाउस रे स्टोर करके रखिचंती ता माने आपण इंडिया रे बिजनेस करूचंती आपण बिजनेस करूचंती बोली इंडिया रे से गुड्स गुडा को स्टोर करके रखिचंती सेति पय आपण को एक्स्ट्रा टैक्स लगा देबाको पड़िबो बुझि पारले तो सेही टैक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे डोंट हैव टू पे दैट काइंड ऑफ टैक्सेस जोड़ा कि एक्स्ट्रा टैक्स को जाउतला जे एक्स्ट्रा टैक्स भी आ दबा दरकार नाही ता माने अ विन विन सिचुएशन फॉर फॉरेन कंपनीज जो माने 5 वर्ष जाय वर्तमान आउ टैक्स देबे नाही जेतल सेल करिवे गुड्स गुडा को जदि से माने स्टोर भी करूचंती ताहले भी टैक्स अथॉरिटीज तांको हैरान करिवे नाही बाय लेविंग एक्स्ट्रा चार्ज ओके एक्स्ट्रा टैक्स okay this gives confidence to global companies. Third, trusted manufacturers can delay paying customs duty. Trusted manufacturers can delay paying customs duty. Normally when a company an Indian company imports goods it must pay customs duty immediately at the port. That means a lot of money is blocked at once. Now selected trusted companies can pay duty later. For example, suppose a mobile phone company imports display screens worth rupees 10 crore. Import display screens worth rupees 10 crore. Instead of paying duty immediately, it can pay after selling the phones. This improves cash flow and makes business easier. तो आगुरु कौन होतला जदि सपोज इंडियन कंपनीज माने बाहर जहां भी गुड्स इंपोर्ट करूथले से मान को इमीडिएटली कस्टम्स ड्यूटी देबाको पड़तला गवर्नमेंट को किंतु गवर्नमेंट वर्तमान कौन गवर्नमेंट कहूची यू डोंट हैव टू पे इंडियन कंपनीज मान कहूची यू डोंट हैव टू पे कस्टम्स ड्यूटी इमीडिएटली आपण जेतेबेले बिजनेस करि देबे बुझ पाले सपोज फॉर एग्जांपल जबति गोटे मोबाइल फोन कंपनी 10 कोटी टंकार कौन डिस्प्ले स्क्रीन्स इंपोर्ट करला बाहर तो वर्तमान से गुडा को बिक्री करिवो इंडिया रे तो आगुरु कौन होतला जो मोमेंट रे से इंपोर्ट करले गुड्स गुडा को सेही मोमेंट रे ही तांको कस्टम ड्यूटी देबाको पड़तला किंतु एबे गवर्नमेंट कहूची इंस्टेड ऑफ पेइंग ड्यूटी इमीडिएटली the company can pay the custom duty after selling the phones. जेतबेले ए सब गुडा को बिक्री हे जिवो सेतबेले इनफ इनकम अर्न कर देथिबे कंपनीज माने सेतबेले से माने टैक्स पे करिवे किछि असुविधा नाही फाइन ओके सो दिस इंप्रूव्स कैश फ्लो एंड मेक्स बिजनेस इजियर. फोर्थ होची कोन फोर्थ होची सी फूड एक्सपोर्टर्स. सी फूड तो आपण समझ जानि थिबे सी फूड कोन तो सी फूड एक्सपोर्टर्स मानन को भी किसी सुविधा प्रोवाइड करा जायछि. इंडिया आपण जानि थिबे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड. सो सी फूड एक्सपोर्टर्स मानन को भी गोटे सुविधा प्रोवाइड कराइछि. कोन प्रोवाइड कराइछि देखंतु एटी प्लीज सी फूड एक्सपोर्टर्स कैन नाउ इंपोर्ट मोर मटेरियल्स without paying duty. Can now import more materials without paying duty. Earlier they could import duty free inputs equal to only 1% of their export value. Now this limit is increased to 3%. देखो जो सी फूड एक्सपोर्टर्स माने अच्छंती से माने किसी सोफिस्टिकेटेड इनपुट से गला किसी सोफिस्टिकेटेड इनपुट से माने बाहर इंपोर्ट करथले तांको बिजनेस को ऑपरेट करिवा पय किबा सी फूड समुद्र रे जाई कि जहां भी माने माछ धरिवा हो किबा जहां भी से माने बिजनेस करंती बुझ पारले तो तांको किसी सोफिस्टिकेटेड इनपुट दरकार होची सब बेले दरकार हुए तो से माने से सोफिस्टिकेटेड इनपुट्स को बाहर इंपोर्ट करथले. किंतु प्रॉब्लम कोन देखंतु आगरु होतला कोन जदी गोटे सी फूड कंपनी गोटे सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी जदि 100 कोटी टंकार जदि सी फूड एक्सपोर्ट करूची ताल तांको पाखरे केवल अनुमति थिला केवल परमिशन थिला जे से माने केते वैल्यू रो गुड्स इनपुट्स को इंपोर्ट करि परिबे ओनली 1% ऑफ देयर एक्सपोर्ट वैल्यू. ता माने होची जदि से माने 100 कोटी टंकार जदि सी फूड को एक्सपोर्ट करूचंती ताहाले से माने केवल
1% ता माने केवल गोटे कोटी टंकार इनपुट्स ही से बाहर इंपोर्ट करि पारथुले आई होप आपण माने बुझी पारथुबे जदि से माने 100 कोटी टंकार जदि सी फूड एक्सपोर्ट करूथुले ताले सेमानन पाखरे परमिशन थिला से माने केवल 1% ऑफ देयर एक्सपोर्ट वैल्यू ता माने 100 कोटी टंकार जदि से माने एक्सपोर्ट करूचंदी सी फूड ताले से माने केवल 1 करोड़ वर्थ ऑफ इनपुट्स को ही बाहर इंपोर्ट करि पारथुले हला एबे किंतु से लिमिट टा बढ़ी दे गवर्नमेंट बढ़ी देछि कर देछि केते 3% ता माने एबे एबेठू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जदि से माने 100 कोटी टंकार जदि सी फूड को एक्सपोर्ट करूचंती ताहले से माने अप टू 3 करोड़ माने 3 कोटी टंकार अप टू 3 करोड़ वर्थ ऑफ इनपुट्स को से माने इंपोर्ट करि परिबे बाहर सोफिस्टिकेटेड इनपुट्स हे गेला हला सेटा भी तांको गोटे सुविधा हेछि ओके कहीं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इनपुट्स कौन करे एक्चुअली आपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिए जहाँ द्वारा कौन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ी जाए and it reduces the cost and makes your goods more competitive in the international market as well as in the domestic market. So now it can import 3 crore worth duty free inputs. So this reduces cost and helps them compete globally. Fine. Now fifth कौन देखंतु जो फुटवेयर एक्सपोर्टर्स अछंती फुटवेयर एक्सपोर्टर्स मानन को भी गोटे किछि सुविधा प्रोवाइड कराई छि ए बजेट रे प्लीज सी हियर ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड टू फुटवेयर एक्सपोर्टर्स कौन बेनिफिट प्रोवाइड कराई छि देखंतु द टाइम allowed to export finished goods has increased from 6 months to 1 year. Imagine a shoe manufacturer, imagine करंतु गोटे shoe manufacturer अछि जे कि लेदर को इंपोर्ट करूची लेदर को बाहर इंपोर्ट करूची आ से लेदर को यूज करिकि फिनिश्ड गुड्स तयारी करूची बुझि पाले जूता तयारी करूची imports leather and other materials without paying duty. Earlier he had only 6 months to manufacture and export the shoes. तो बाहर जो शू मैन्युफैक्चरर अछंती से माने बाहर जहां भी लेदर किंबा अन्य कोनसी मटेरियल जहां भी इंपोर्ट करथले विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी गवर्नमेंट से को टाइम देथिला ओनली 6 मंथ्स 6 मास भितरे से माने मैन्युफैक्चर करिवे फिनिश्ड गुड्स और एक्सपोर्ट करिवे इफ ही फेल्ड ही हैड टू पे पेनल्टी जदि 6 मास भितरे से फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करिकि जदि एक्सपोर्ट न करि परथला ताल गवर्नमेंट तापर पेनल्टी लेवी करथला किंतु वर्तमान से लिमिट को बढ़ई देकी गवर्नमेंट केते कर देछि 1 ईयर ता माने एबे जदि सी जो फुटवेयर एक्सपोर्टर्स माने बाहर जहां भी लेदर हे गेला जहां भी अदर मटेरियल्स जदि से माने इंपोर्ट करूचंती विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी कस्टम ड्यूटी टू द गवर्नमेंट ताहले फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स से माने पाखरे 1 ईयर टाइम अछि गोटे वर्ष भितरे से माने फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करिवे मैन्युफैक्चर करिकि से माने एक्सपोर्ट करिवे जदि गोटे वर्ष भितरे मैन्युफैक्चर करिकि जदि एक्सपोर्ट न करि परचंती ताले गवर्नमेंट समान ऊपर पेनल्टी पकेबो किंतु पूर्वरु अर्लियर द टाइम लिमिट वाज ओनली 6 मंथ्स फाइन एटा गोटे सुविधा प्रोवाइड कराई छी इफ ओके सो नाउ ही गेट्स 1 फुल ईयर व्हिच रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल रिस्क तो गोटे स्ट्रेस रहउतला आगुरु बुझि पारले तो 6 मास भितरे किमिति हमें मैन्युफैक्चर करिकि एक्सपोर्ट करि परिबा समय बहुत कम हो जाउची कोन तो बहुत कंपनीज माने करि भी पार नथले तो पेनल्टी लेवी करतला गवर्नमेंट तो वर्तमान से लिमिट टा बढ़े दैछंती वर्तमान 1 ईयर कर दैछि तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर द फुटवेयर एक्सपोर्टर्स एंड सिमिलरली देयर आर डिफरेंट आउ केते प्रकार गवर्नमेंट स्टेप्स नैछि फॉर एग्जांपल सी हियर देखंतु कस्टम ड्यूटी exemption is given on components used in aircraft manufacturing. Okay, aircraft manufacturing देखो aircraft manufacturing requires expensive and specialized parts. Okay, aircraft manufacturing बहुत expensive aircraft manufacturing ପାଇଁ actually producers मान को कौन दरकार specialized parts दरकार expensive जोड़ा के बहुत expensive था if companies import these parts without paying customs duty they can assemble aircraft in India at lower cost यदि से माने custom duty यदि से माने को देवा को न पड़े ताले तांगा cost of production drastically कमिवो जा द्वारा कि कोन India this encourages what aviation manufacturing within the country fine and these are some tax relaxation reforms which the government is going to launch in this budget okay तो बाकी गुडा को भी सहज अछि अपन just you can go through it okay the government actually the simple words देखिबा जदि हम simple words रे तो government कोन कहउची we will reduce your tax problems आपनकर जहां भी tax problems अछि मैन्युफैक्चरर्स मानन को कहउची मैन्युफैक्चरर्स मानन को आपनकर जहां भी tax problems अछि
आमे से टैक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करबा पे चेष्टा करिवु इन रिटर्न आपण कोन करंती इन रिटर्न यू मैन्युफैक्चर मोर इन इंडिया हला आपण बेसी रु बेसी मैन्युफैक्चर करंतु इंडिया रे बेसी रु बेसी एक्सपोर्ट करंतु हेल्प कंट्री ग्रो एटा ही गवर्नमेंट रो एक्चुअली एम ना सेकंड देखंतु वर्तमान हमर फर्स्ट पिलर ही चली सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हला फर्स्ट पिलर चलछि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ को केमिति इंक्रीज करे परिबा आ से ग्रोथ रेट को केमिति सस्टेन करे परिबा सेही पिलर ही चलछि प्रथमे गवर्नमेंट कहला हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर फोकस करिबा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करिबा पई स्ट्रेंथन करिबा पई गवर्नमेंट के टैक्स रिफॉर्म्स भी नै के आछछि ता सहित गवर्नमेंट कोन करूछि देखंतु एमएसएमईज देखंतु एमएसएमईज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कहूछि एमएसएमईज एज ग्रोथ इंजिन्स हला एमएसएमईज एज ग्रोथ इंजिन काइना a huge percentage of the India's workforce is engaged in MSMEs micro small medium enterprises तो MSMEs को डेवलप करबा पई गवर्नमेंट के स्टेप्स नै छि what steps has been taken by the government let us understand one by one dedicated 10,000 crore SME growth fund तापर एगुडा को जो नै छि एक्चुअली स्टेप्स नै छि ए स्टेप्स गुडा को बुझिबा एगुडा को टेक्निकल हे जिवो आपन को बुझिबा पई तो सिंपल वर्ड्स में लिखि छि बुझि परिबा आपन देखो देखो जब एमएसएमई सेक्टर्स रे जो लोक माने जो प्रोड्यूसर्स माने अछंती एमएसएमई सेक्टर रे जो प्रोड्यूसर्स माने अछंती जदि से माने गोटे नॉर्मल बैंक रो गोटे बैंक रो लोन नियंती ताले प्रॉब्लम कोन हुए देखंतु जदि से माने बैंक रो लोन नियंती ताले कोन प्रॉब्लम हुए जदि आपण सपोज आपण किछि आपण एमएसएमई सेक्टर रे एंगेज अछंती आपण किछि भी गोटे प्रोड्यूस करछन फॉर एग्जांपल गोटे बैग प्रोड्यूस करछन स्कूल बैग प्रोड्यूस करछन एमएसएमई सेक्टर रे आपण स्कूल बैग प्रोड्यूस करछन आ मार्केट रे सेल करछन तो आपण चाहउचंती जे आपण बिजनेस टा को एक्सपैंड करिया पे चाहउचंती तो आपण को किछि बिजनेस टा को एक्सपैंड करिया पे आपण को कैपिटल दरकार पैसा दरकार आपण बैंक को गले बैंक को जाई कि आपण लोन पे अप्लाई करले देखंतु यदि आपण बैंक को जाई कि गोटे लोन जदि लोन नउचंती हला आपण बिजनेस को एक्सपैंड करिया पे ताले बैंक कोन कहबो ठीक अछि हम आपण को लोन देबु किंतु आपण को नेक्स्ट मास रो ही आपण को ईएमआई पे करिया को पड़िबो बुझि पारले तो ये देखो कौन है आमर बिजनेस आउरी एक्सपैंड है नहीं मुझे जस्ट लोन नेली तो बिजनेस को एक्सपैंड करने मत समय लगे मत आ गए फैक्ट्री तैयारी करिया पड़ो लोक मान हायर करिया पड़ो प्रोडक्ट मशीन्स किनिबी तापर प्रोडक्शन स्टार्ट करी बुझिपारे प्रोडक्शन स्टार्ट हम तापर मैन्युफैक्चर करी तापर सेल करी तापर मु प्रॉफिट अर्न करी रेवेन्यू अर्न करी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट तो प्रॉफिट अर्न करी किंतु ए सब हवा पूर्व ही बैंक कहूँ कौन आपको प्रथम आप ए मास लोन नेले तो नेक्स्ट मास आपको ईएमआई पे करिया पड़ो दिस मेक्स बिजनेस डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल कहीं मासो मासो आपण बिजनेस आउरी एक्सपैंड करि नहंती बिजनेस न्यू विंग आपण बिजनेस एक्सपैंड कर नहंती आपण को से एक्सपेंशन रो वर्तमान जे आपण कोन से रेवेन्यू अर्न कर नहंती किबा प्रॉफिट अर्न कर नहंती किंतु प्रति मास आपण को ईएमआई दबा को पडुची बुझि पारले सो इट मेक्स बिजनेस स्ट्रेसफुल फाइन तो सेति पय नॉर्मल लोन से द प्रॉब्लम एआई प्रॉब्लम द गवर्नमेंट कोन कहूची एट देखन लिखा है द प्रॉब्लम इज दैट योर न्यू फैक्ट्री विंग इजंट इवन बिल्ट येट आपण आउरी तयारी कर नहंती फैक्ट्री किंतु you haven't sold a single extra bag किंतु वर्तमान आपन को प्रति मास आपन को ईएमआई देबा को पडुची बुझि पारले प्रॉफिट आसीबो मु रेवेन्यू मी इनकम अर्न करिवि रेवेन्यू अर्न करिवि प्रॉफिट अर्न करिवि तापर जाय कि मु पे करि परिबि किंतु ऑलरेडी माने कोन बैंक कहूची आपन करंतु किबा न करंतु आपन लोन नै चंदी माने नेक्स्ट मास रे आपन को ईएमआई देबा को पड़िबो फाइन दैट इज द प्रॉब्लम रो सब ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन कोन ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन होउची एसएमई ग्रोथ फंड एटा गोटे फंड देखो गवर्नमेंट गोटे फंड तैयारी करची गवर्नमेंट केते टंगा गोटे फंड तैयारी करची देखो डेडिकेटेड 10,000 कोटी टंगार एसएमई ग्रोथ फंड तैयारी करची ए फंड रो ओनर किए ए फंड रो ओनर होची गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कोन कहूची देखो इक्विटी सपोर्ट देखो is like finding a wealthy partner who believes in your vision. Instead of loaning you the money, the government's fund invest it in your business. In exchange for that money, they don't ask for monthly payments. Instead, they say, we now own 10% of your company. जो फंड गवर्नमेंट तैयारी करिवो एसएमई ग्रोथ फंड से फंड रो वैल्यू होची केते 10,000 कोटी टंका गवर्नमेंट कहूची जे मु आपन को बिजनेस को एक्सपैंड करिया पे आपन को जेते के टंका दरकार मु देबी आपन को
आपन को 10 कोटी टका दरकार किंबा 20 कोटी टका दरकार मु देबी से पैसा किंतु गवर्नमेंट कहूची ए पैसाटा लोन नुहे ए पैसाटा लोन नुहे मु आपन को बिजनेस रे इन्वेस्ट करूची आई एम इन्वेस्टिंग द मनी इनटू योर बिजनेस काहे इन्वेस्ट करूची बिकॉज गवर्नमेंट कहूची आई बिलीव इन योर विजन आपन जहाँ भी विजन अच्छी आपन विजन रे मु बिलीव करूची सेति मु पैसाटा इन्वेस्ट करूची जदि गवर्नमेंट पैसाटा इन्वेस्ट करूची तांको गोटे गोटे एमएसएमई सेक्टर रे तो गवर्नमेंट एटी कोन जदि इन्वेस्ट करूची गवर्नमेंट कोन हे गेला गवर्नमेंट हे गेला पार्टनर जदि आपण से बिजनेस रे पार्टनर हे गेले जदि गवर्नमेंट से बिजनेस रे जदि पार्टनर हे जाउचंती ताहाले बिजनेस ता जहां भी प्रॉफिट करिवो फॉर एग्जांपल सपोज गवर्नमेंट आपन को बिजनेस रे इन्वेस्ट करला ता इन्वेस्ट करिया बदले गवर्नमेंट कोन कहला मु आपन को लोन दोनी किंतु जहां भी टंका आपन को दरकार मु देबी किंतु आपन 10% आपन को कंपनी रो 10% स्टेक मोर हबो तमाने आई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ओन 10% ऑफ योर कंपनी तमाने आपन को कंपनी रो 10% वर्तमान मु ओन करिवि आपन वर्ष को जहां भी प्रॉफिट करिवे तार 10% मु नै जिवि जदि गवर्नमेंट सपोज 20 कोटी टका किबा 10 कोटी टका इन्वेस्ट करिछि ताहले से कंपनी जहां भी वर्ष को प्रॉफिट करी जीवो तार 10% गवर्नमेंट को दे जीवो बुझबे भाई बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड गवर्नमेंट निजे कहिछि जे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बिकम 10% और 15% ओनर ऑफ योर कंपनी फाइन एटा भलो हैला आपन जदि लोन नै थानते तो लोन प्रति वर्ष प्रति मास आपन को ईएमआई देबा को पड़थांता तो एबे गवर्नमेंट कोन कहूछ गवर्नमेंट जेहेतु पैसा इन्वेस्ट करी गवर्नमेंट पार्टनर हे गेला तो प्रॉफिट करले गवर्नमेंट प्रॉफिट लाभ हो और जदि लॉस होची देन गवर्नमेंट भी कहूची ठीक अछि जदि लॉस होची सिंस आई एम द पार्टनर आई एम रेडी टू बियर द लॉस फाइन तो गवर्नमेंट इज नाउ बिकमिंग अ पार्टनर तो गवर्नमेंट जदि एई परी जदि सुविधा प्रोवाइड करूची ताले कोन एक्चुअली हबो नो मंथली स्ट्रेस आउ नाही हमको आपण स्ट्रेसफुल रहिबनी प्रति मास मते ईएमआई देबार अछि बुझि पारले देन शेयर्ड रिस्क जो रिस्क अछि वर्तमान शेयर हे जाउची बुझि पारले का भितरे से बिजनेस भितरे आ गवर्नमेंट भितरे रिस्क शेयर हे जाउची देन द बिग पे ऑफ जदि कंपनी आगु को जाई कि जदि कंपनी आगु को जाई कि बहुत एक्सपांड करि गला त सेटा गवर्नमेंट रो गवर्नमेंट ही बेनिफिट करिवो काइना प्रति प्रॉफिट रो 10% गवर्नमेंट को आसीबो बुझ पारले जदि बुझ परछन दिस काइंड ऑफ थिंग्स द गवर्नमेंट वर्तमान बुझ पारले सो आपण बाकी गुडा को आपण देखि देबे फाइन इन सिंपल वे रे लिखाई छी एग्जांपल देख लिखाई छी ओके आ गोटे देखंतु एठी लिखा हितला कोन देखंतु ट्रेड सिस्टम ट्रेड रिसीवेबल्स ओके ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम देखंतु एठी लिखा हिची ट्रेड सिस्टम माने कोन एठी ट्रेड्स देखंतु एठी ट्रेड सिस्टम अछि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम गोटे इंट्रोड्यूस करिया को जाउची गवर्नमेंट देखंतु एठी कोन अछि द ट्रेड सिस्टम इज एसेंशियली अ डिजिटल इमरजेंसी कैश बटन फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स देखंतु इमेजिन आपण गोटे एठी देखंतु एग्जांपल म आपण को बुझे दोची सपोज आपण को बिजनेस अछि आउ आपण कोन मैन्युफैक्चर करछंती आपण सपोज चेयर्स मैन्युफैक्चर करछंती चेयर्स आपण को गोटे बड़ कंपनी रू 5000 टा चेयर मैन्युफैक्चर करबा पे ऑर्डर मिलला गोटे बड़ कंपनी कहला हमको 5000 चेयर दरकार आउ से ऑर्डर टा आपण को मिलला यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर तो आपण कोन करले आपण 5000 टा चेयर मैन्युफैक्चर करबा पई रॉ मटेरियल्स किनिले जहा दरकार किनिले लेबर मान को हायर करले एक्स्ट्रा लेबर्स मान को हायर करले लेबर मान को हायर करिकी आपण 5000 चेयर्स बिल्ड करले मैन्युफैक्चर करले आउ सेल कर देले से कंपनी को दे देले कंपनी को डिलीवर कर देले किंतु कंपनी एटी कोन कहूची कंपनी कहूची जे मु आपण को पेमेंट एबे नुहे 3 मास पर पेमेंट देबी एमती हुए बिजनेस वर्ल्ड रे एमती हुए कहीं ना तांका पाखरे भी इमीडिएटली कैश न थाए तो सेमान कहंती ठीक अछि 3 मास पर मु पे कर देबी एबे एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आपन को प्रॉब्लम कोन ठीक अछि आपन पैसा काठू लोन नेथिले किबा आपन निज पैसा यूज करिकि निज पैसा खर्च करिकि जहां भी मैन्युफैक्चर करले आपन जहां भी लेबर माने लेबर को हायर करथले समस्त को पेमेंट क्लियर कर दैछंती किंतु वर्तमान आपन को जो पेमेंट मिलवा कथा 5000 चेयर्स डिलीवर करले आपन को जो पेमेंट मिलवा कथा से पेमेंट आपन को 3 मास पर मिलिबो सपोज मीनवाइल ठीक आपन को आउ गोटे ऑर्डर आसला तो आपन तो वर्तमान एबे जाय आपन को पूर्व डिलीवरी रो पेमेंट मिलिनी किंतु आपन को आउ गोटे ऑर्डर आसीगला तो वर्तमान आपन पाखरे कोन यू आर आपन पर कैश नाही वर्तमान से जो वर्तमान जो न्यू ऑर्डर आसला से न्यू ऑर्डर को मटेरियलाइज करिया पई यू डोंट हैव द मनी राइट नाउ विथ यू जदि आपन पाखरे पैसा नै त आपन कोन करिवे
सेति गवर्नमेंट कौन करछि गवर्नमेंट ट्रेड सिस्टम नहीं कि आछि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम अंडर दिस सिस्टम देखो अंडर दिस सिस्टम कौन हुए गोटे प्लेटफॉर्म अच्छी अंडर दिस सिस्टम देयर इज अ प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म रे आपण कौन करिवे से प्लेटफॉर्म रे आपण जो बिलटा देइथिबो के जो बड़ कंपनी आपण को 5000 चेयर्स रो ऑर्डर देला सी आपण को बिलटा प्रोवाइड करथिबो गोटे बिल प्रोवाइड करथिबो जे मु 3 मास विद इन नेक्स्ट 90 डेज मु आपण को पेमेंट कर देबी सेटा होची बिल तो आपण से बिलटा को कौन करिवे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म रे आपण से बिलटा को से इनवॉइस टा को आपण अपलोड करिवे ट्रेड सिस्टम रे कौन हुए डिफरेंट बैंक्स माने पार्टिसिपेट करथांती डिफरेंट बैंक्स माने पार्टिसिपेट करथांती तो आपण जतले इनवॉइस टा जतले आपण अपलोड करिवे से प्लेटफॉर्म रे तो बैंक्स माने वर्तमान सपोज आपण 5000 चेयर डिलीवर करचंती आ 5000 बदले आपण को लाख टंका मिलिवार अछि लाख टंका आपण को मिलिवार अछि तो आपण इनवॉइस टा अपलोड करले से प्लेटफॉर्म रे एबे बैंक्स माने से इनवॉइस को देखिबे काइना सब बैंक्स माने प्राय बैंक्स माने पार्टिसिपेट करिवे से ट्रेड सिस्टम रे बैंक्स माने वर्तमान से इनवॉइस को देखिबे आ आपण को कहिबे जे ठीक अछि आगे बैंक्स माने कंफर्म करिवे जे ए जो बिलटा अपलोड हेची ए बिलटा ऑथेंटिक ना नुहे जेन्युइन ना नुहे तो कंफर्म करिवा पे कौन करिवे से कंपनी टू कंफर्म करेबे से कंपनी टू कंफर्म कर थरे कंफर्म हे सरला पर हां से कंपनी कहबो हां मुही से इनवॉइस मु बिलटा इशू करची मुही इशू करची आ से ऑर्डर जो पेमेंट अच्छी मु 90 डेज 3 मास भीतर मु पे कर देबी थरे कंफर्म कर सरला पर वर्तमान बैंक्स माने कौन करिवे सेठी ऑक्शन हबो बुझ पारले गोटे बैंक कहबो ठीक अछि आपन को लाख टंका मिलिवार थिला मु आपन को गोटे काम करूची आपन को 98000 रुपीस दे देबी तो 98000 रुपीस कोन पई काहे ना बैंक निजे भी तो किछि अर्न करिवो कि निजे भी किछि बैंक भी बिजनेस करूची एठी आपन को लाख टंका मिलिवार थिला 90 दिन परे किंतु बैंक कहूची मु आपन को आज ही पैसा दे देबी किंतु मु 2000 काटी की देबी काहे ना 2000 टा होची मो कमिशन तो आपन को 98000 मु दे देबी आपन को आपन जदी राजी अछन आ गोटे बैंक कहला जे मु आपन को 98500 रुपीस मु एबे दे देबी आ 1500 टका कमिशन काटी नेबी तो जो बैंक रो एक्चुअली जो बैंक आपन को भल लागुची जो बैंक रो आपन को डिसीजन भल लागुची आपन सेही बैंक को अप्रोच करिवे से बैंक आपन को पैसा दे देबो सांस विद इन 24 आवर्स आपन को पेमेंट क्लियर हो जिवो सीता निज कमिशन काटी देबो बाकी पैसा आपन को दे देबो तो जो पैसा आपन को 90 दिन परे मिलिवार थिला से पैसा आपन को वर्तमान 24 घंटा भीतर मिल जिवो जदी आपन से इनवॉइस टा को ट्रेड सिस्टम रे अपलोड करूचंती फाइन दिस इज द ट्रेड सिस्टम एबे किंतु से कंपनी जदी पैसा दबो से कंपनी वर्तमान पैसा आपन को दबोनी पैसा आपन को दबोनी काहा को दबो बैंक को दबो केते टका दबो लाख टका दबो तो बैंक आपन को देतला सपोज 98000 तो बैंक केते पाइबो 1 लाख तो बैंक 98 ऊपर 2000 रुपीस प्रॉफिट करला फाइन दिस इज ट्रेड सिस्टम हला मु लिखि देजी टोटल दामन देखि देबे तापर नेक्स्ट होची कोन नेक्स्ट होची प्रोफेशनल सपोर्ट देखो प्रोफेशनल सपोर्ट कोन प्रोफेशनल सपोर्ट देखो प्रोफेशनल सपोर्ट भी बुझंतो व्हाट यू मीन बाय दिस प्रोफेशनल सपोर्ट देखो आपण सपोज गोटे स्मॉल बिजनेस ओनर आ आपण बिजनेस टा को आपण हार्ड वर्क करिकि परिश्रम करिकि आपण बिजनेस टा को एक्सपांड करेले ओके अक्रॉस इंडिया आपण वर्तमान धीरे धीरे आपण सेल करचंती अक्रॉस इंडिया एबे आपण एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती बाहर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती सपोज यूरोप को एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती तो डिफरेंट रीजन्स को एक्सपोर्ट बाहर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करबा को चाहउचंती किंतु आपण जानिथिबे गोटे कंट्री जेतबेले बाहर गोटे अन्य कंट्री टू जिंस गुड्स गुडा को इंपोर्ट करे तो तार किछटा कंडीशंस थाए कंडीशंस माने किमिति कोन ता माने सपोज ए जो गुडटा मैन्युफैक्चर करा हिची ए गुडटा जो तयारी हिची कोनसी पशु को कोनसी एनिमल को अब्यूज करी की तयारी जेमिति हे नथिबो आपण ए गुड को मैन्युफैक्चर करिवा पई कोनसी चाइल्ड को एम्प्लॉय कर नथिबे बुझ परले ए सब कंडीशंस थाए तांकर सिमति एनवायरनमेंट को किछ रूल एनवायरनमेंट को नै किछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थाए तो आप एबे जदी आपण से गुड्स को एक्सपोर्ट करिया को चाहउचंती तो आपण को रूल्स जणा नाही आपण सपोज यूरोप को एक्सपोर्ट करिया को चाहउचंती सपोज जर्मनी को एक्सपोर्ट करिया को चाहउचंती तो जर्मनी रे भी से किछि कंडीशंस थिबो जो रूल्स गुडा आपण को जणा नाही बुझ पारले तापरे आपण को जो गुड्स एक्सपोर्ट करिवे आपण को सेठी जर्मनी को कस्टम ड्यूटी भी देबाबो पड़िबो फाइन तो ये टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपण को जणा नाही कि आपण को बुझी भी होनी आपण को बुझी भी पारनांती किंबा आपण को जणा नाही बुझी भी पारनांती कोन कोन रूल्स अछि तो जेहेतु आपन को जणा नहीं
तो आप एक्सपोर्ट भी करूना कहीं रिस्की हो जाओ जदि भी एक्सपोर्ट करूँगी जदि रूल्स को कन्फर्म करूना जदि रूल्स को अवॉइड इफ यू डोंट अवॉइड बाय द रूल्स ताले प्रॉब्लम कौन हुए तो हो पारे जे से कंट्री टोटली बैन कर दे पारे आपन को फॉर फर्दर आउ एक्सपोर्ट करि परिबेनी किंबा हेवी पेनाल्टी लेवी कर दबो सेति गवर्नमेंट कौन करछि इमितिया एक्सपोर्ट इमितिया बिजनेस ओनर्स मानन को सहाय्य करबा पई कौन करछि गोटे कांसेप्ट नै के आछि जार ना होछि कोन कॉर्पोरेट मित्र कौन कौन कांसेप्ट कॉर्पोरेट मित्र बुझ पारले तो कॉर्पोरेट मित्र ता माने कोन ये जो कॉर्पोरेट मित्र जो होचंती ए माने हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स माने हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जे माने कि अकाउंटेंट्स हे गले लॉयर्स हे गले बिजनेस एक्सपर्ट्स हे गले हु आर स्पेशली असाइन्ड टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस हला ए माने होचंती एक्सपर्ट्स तो ए माने जदी आपण ए मानन तो सहाय्य नेबे बुझ पारले तो ए मानन तो जदी आपण सहाय्य नेबे ताले ए माने कोन ए माने होचंती गवर्नमेंट एजेंट्स हला ए माने होचंती गवर्नमेंट एजेंट्स तो ए मानन तो जदी ए मानन तो आपण सहाय्य नेबे तो ए माने बेसी फीस भी चार्ज करिवेनी आपन को रूल्स भी क्लियर कहि देबे तो आपन को कोन गोटे अफोर्डेबल प्राइस रे आपन से रूल्स कौन रूल्स अच्छी जानी परिबे कौन रूल्स को किमिति आपन किमिति से रूल्स को जानी परिबे जहाँ भी कंडीशंस अच्छी तांकर फुलफिल हेई परिबो बुझ पारले अफोर्डेबल प्राइस रे हेई परिबो आगुरु कोन होतला जदी सपोज मु रूल्स जानिनी किंतु जर्मनी को एक्सपोर्ट करिया को चाहूची ताले मते एक्सपर्ट को हायर करिया पड़तला आ एक्सपर्ट कोन होतला बहुत हाई हेवी प्राइस हेवी फी चार्ज करतला जोटा कि एक्चुअली मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़े देउतला फाइन तो वर्तमान कौन हम जेहेतु गवर्नमेंट वर्तमान कॉर्पोरेट मित्र कॉन्सेप्ट लॉन्च करछि ते माने होचंती गवर्नमेंट एजेंट्स एंड एज वेल एज दे आर एक्सपर्ट्स तो सेही एक्सपर्ट्स माने वर्तमान कौन करिवे आपन को सहाय्य करिवे अफोर्डेबल प्राइस रे आपन को सब रूल्स बुझे देबे बुझ पाले कौन रूल्स अछि आपन बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे रूल्स गुडा को बुझी परिवे तापरे रूल्स को कंफर्म करके आपन एक्सपोर्ट करि परिवे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट मित्र ओके अफोर्डेबल एडवाइस देबे ट्रांसलेट द लॉ द कंप्लायंस शील्ड हला ए सब जिंस अछि यू जस्ट गो थ्रू इट तापर देखो गवर्नमेंट कौन करछि सर्विस सेक्टर को ऊपर किसी फोकस करछि सर्विस सेक्टर ओके सर्विस सेक्टर ऊपर भी फोकस करछि एटा हेगला वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेगला वर्तमान जे हमें फर्स्ट पिलर रे ही अच्छे मतलब सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रे कौन हला प्रथमे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर फोकस करथला एबे सर्विस सेक्टर ऊपर फोकस करछि सो हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी तापर अपग्रेड एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ये सब स्टेप्स नहीं गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स माने कौन हम देखिया गोटे करके बुझिबा देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे करके बुझिबा देखो एठी फर्स्ट हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी विल फोकस ऑन मेकिंग एजुकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड टू जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखो एग्जांपल देखो एठी प्लीज एग्जांपल या माने कौन बुझी परिबे जदि गोटे स्टूडेंट इफ अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट the training should prepare them to work in hotels or even start their own travel company. The aim is to make the service sector a major driver of developed India. जदि गोटे स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढुछि ताले ताकू एमिति ताकू पढिबा प्रोसेस रे ही तार एकेडमिक प्रोसेस रे ही एमिति ताकू ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो जहा द्वारा कि सी ता डिग्री कंप्लीट करू करू ताको कौन सी गोटे होटेल रे ताको जॉब मिल जाई पारे किंबा से निजर गोटे ट्रैवल कंपनी जेमिति ओपन कर दे पारथो वर्तमान गवर्नमेंट सा ऊपर फोकस करूची दैट इज द ऑब्जेक्टिव हेल्थ सेक्टर देखो तो हेल्थ सेक्टर कौन द गवर्नमेंट प्लान्स टू अपग्रेड एंड सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स कौन कहूची गवर्नमेंट एटी द हेल्थ सेक्टर द गवर्नमेंट प्लान्स टू अपग्रेड एंड सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के गोटे जो आप जानते हेल्थ प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स माने तांकू छाड़ देले आपण जानते हॉस्पिटल जो मेडिकल सेक्टर रे बहुत गुड़ा टेक्नीशियंस था लैब टेक्नीशियंस हो गले फॉर एग्जांपल जमीती फिजियोथेरापिस्ट हो गले लैब टेक्नीशियन हो गले रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हो गले बुझ पाले इमरजेंसी केयर स्टाफ हो गले तो गवर्नमेंट कौन कहूची देखो गवर्नमेंट कहूची सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन एटा लैब टेक्नीशियन होची गोटे डिसिप्लिन फिजियोथेरापी होची गोटे डिसिप्लिन रेडियोलॉजी होची गोटे डिसिप्लिन इमरजेंसी केयर होची गोटे डिसिप्लिन से एमिति 10टा डिसिप्लिन गवर्नमेंट सिलेक्ट करिवो आउ से डिसिप्लिन रे गवर्नमेंट कोन करिवो with respect to those disciplines the government will set up new institutions जो institutions रे ए डिसिप्लिन्स को नेकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा हबो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाई परिबो बुझ पारले
So see, for example, when someone goes to a hospital for an X-ray, it is not the doctor who operates the machine, but a trained radiology technician. By increasing such institutions, more skilled health workers will be available, which improves healthcare services. Hello? Now, care ecosystem. देखो तो care ecosystem कौन? Care ecosystem. देखो तो care ecosystem. The government will develop NSQF, means what? National Skill Qualification Framework, which ensures proper skill standard. This means people will be trained to take care of elderly persons, patients or children in a professional way. For example, a trained caregiver can help an elderly patient with daily activities, give medicine on time and monitor health properly. This also creates employment for many youth. जो National Skills Qualification Framework होची, it aims to improve what? The skill standards. तामाने जो लोक माने वर्तमान एल्डरली मानकर केयर नौचंती किंबा पेशेंट्स मानकर केयर नौचंती किंबा चिल्ड्रन मानकर केयर नौचंती सेमान को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाय परिबो जहा द्वारा कि सेमान को बहुत भलो रे आउरी प्रोफेशनल वे रे तांको निज काम करि परिबे. फाइन. ओके. मेडिकल टूरिज्म. प्लीज सी द मेडिकल टूरिज्म सेक्टर कोन. देखो तो states will be supported in establishing 5 hubs for medical value tourism in partnership with private sector. Medical tourism माने कौन? Medical tourism माने होची जो फॉरेन कंट्रीज रो लोक माने इंडिया को आसिक ट्रीटमेंट करांती. फॉरेन कंट्रीज रो लोक माने इंडिया को आसिक ट्रीटमेंट करांती. काहे करांती? काहे ने इंडिया रो जो ट्रीटमेंट जो मेडिकल इंडस्ट्री अछि बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स गुडा को प्रोवाइड करे. बुझ पाले? सर्जरीज हे गला. बुझ पाले? बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे इंडिया जो ट्रीटमेंट गुडा को प्रोवाइड करा जाए. तो सेति पई सो मेडिकल टूरिज्म मींस पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी. बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे और हाई क्वालिटी सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा जाए इंडिया रे. सेति पई अन्य कंट्री लोक माने इंडिया को आसी के समान ट्रीटमेंट कराय को चाहंती. So for example, a patient from Africa might come to India for heart surgery because it costs much less here compared to western countries. जदि अमेरिका जिबे यूरोप जिबे सेठी आपण एतिके अफोर्ड करि परिबेन हार्ट सर्जरी पई जोटा कि इंडिया रे अफोर्डेबल प्राइस रे प्रोवाइड करा जाय. So by creating medical hubs with good hospitals, hotels and transport facilities, India can attract more patients and earn foreign exchange. This is the objective of this medical tourism. आयुष ए आयुष गुडा को वर्तमान एबे हम एट लेखा हिचे एटा जस्ट लेखा हिचे हम डिस्कस करबा हिचे. देखो आयुष देखो प्लीज सी हियर आयुष अपन जानिथिबे हिचे आयुष. इंडिया हैज अ डीप हेरिटेज ऑफ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. अपन जानिथिबे फॉर सेंचुरीज दिस सिस्टम्स एक्जिस्टेड एज ट्रेडिशनल नॉलेज. ओके. तो गवर्नमेंट कोन करूची वर्तमान? गवर्नमेंट चाहूची सी when the government talks about creating 3 new all India institutes of Ayurveda and upgrading drug testing labs and pharmacies, it is not just about healthcare, it is about converting traditional knowledge into a globally competitive industry. तो इंडिया कौन वर्तमान आयुर्वेद तो इंडिया रे बहुत फेमस अच्छी, बहुत चली बहुत फेमस तो अच्छी इंडिया आयुर्वेद. किंतु इंडियन गवर्नमेंट कौन करूची? इंडियन गवर्नमेंट चेष्टा करूची फॉरेन कंट्रीज रे भी चाहूची आयुर्वेद को प्रमोट करबा पे चाहूची. बुझ पारल? तो ता पे गवर्नमेंट सपोज एग्जांपल सी हियर एग्जांपल इमेजिन एन आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन केरला. इफ तार जदी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन गुडा को केरला रे मैन्युफैक्चर करा जाउची जदी से प्रोडक्ट्स को से मेडिसिन को जदी इफ दोज मेडिसिन्स आर सर्टिफाइड by world class testing labs जदि से मेडिसिन को जदि world class testing lab जदि सर्टिफाई करूचंती है ना करूचंती that foreign buyers in Europe or America will trust the product. ताले हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रा हमें एक्सपोर्ट बढ़ाई परिबा and in return we can earn more and more foreign exchange. So when exports increase, foreign exchange comes in and companies expand, research grows and employment rises. This is the objective. Okay. So it देखो तो आगोटे होचिंग AVGC. वर्तमान AVGC को ऑरेंज इकोनॉमी. AVGC is otherwise called as orange economy. Orange economy माने कौन? AVGC माने होची एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल कंटेंट. हेलो दिस ए जो AVGC को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाए. The economy, this is the orange economy, is the economy of creativity, is the economy of what? Creativity. Okay.
which constitute what? Animation, visual effects, gaming, comics and digital content. Today the global gaming industry is bigger than the film industry. So streaming platforms needs animation, movies need VFX, social media needs digital creators. Jadi India, if India trains students in 15,000 schools and 500 colleges, जदि 15,000 schools रे आउ 500 colleges रे जदि आमे ABGC school skills को provide करे परिवा जदि students मानन को, then it is preparing a generation not just to consume foreign games and content but to create and export them. आज का डेट रे आमे जहाँ भी advanced games हे गला किंबा जहाँ भी हमरो visual effects and animation हे गला फॉरेन कंट्रीज रे कोन आपन एई कि जो क्रिएटिविटी अछि बहुत हाई अछि जोडा कि इंडिया रे नाही सेते हाई नाही तो सेते क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाहर ने आउटपुट बाहर ने तो इंडिया कोन कहउची इंडियन गवर्नमेंट कहउची जदि हमें स्कूल पिला मानन को आ कॉलेज रे जो बन पढुचंती जदि हमें से स्किल ता से जदि हमें से ट्रेनिंग जदि हमें समान को प्रोवाइड करे दे परिबा ताले कोन हमें केवल हाई क्वालिटी एनिमेशन हे गला हाई क्वालिटी वीएफएक्स हे गला हमें केवल कंज्यूम करूचे किंतु प्रोड्यूस करि पारने जदि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग आउ एडवांस ट्रेनिंग जदि प्रोवाइड करि परिबा देन वी कैन क्रिएट हाई क्वालिटी आउटपुट विद इन द कंट्री इटसेल्फ ता माने हिं से ओके देन कम्स डिजाइन को नै कि भी तापर सपोज डिजाइन को नै कि भी किसी स्टेप्स नि आइ छै जस्ट ए सब नै जस्ट गो थ्रू इट ओके देन एगुडा को सिंपल अछि बुझ पाले द गवर्नमेंट कहउची कोन गवर्नमेंट कहउची 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स तयारी करिवो गर्ल्स हॉस्टल तयारी करिवो बुझ पाले setting up National Institute of Hospitality, pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites. So these are the things, you just go through it, they are quite simple. It explain korichi with examples, just go through the PDF, you will come to understand. Then increasing farmers income by enhancing productivity in agriculture and allied sectors. Okay, farmers manangro income को किमिति हमें बढ़ाई परिबा देखो तो it please see here. Many orchards in India are old. बहुत जे इंडिया रे जो orchards अछि orchards माने बुझी परथुवे जोटी horticulture हुए orchards in India बहुत पुराना ही जाई छी बहुत old orchards अछि so old trees give low yield हला the old orchards अछि सेटा ओ low yield provide करे. For example, suppose a 20-year-old apple orchard gives only 5 tons per hectare. If those trees are replaced with new high density varieties, the same land may produce 15 tons per hectare. That means production becomes 3 times higher without increasing land. Hello. This is how the actually the people who are engaged in the farmers can increase their income. Okay. तापरे coconut promotion हे गला cashew and cocoa program को भी government support करूची animal husbandry and supporting entrepreneurship को भी government कौन support करूची. Okay. So this is the fisheries development along reservoirs Amrit sarovars the government is focusing on this so as to increase the farmers income. Bharat Vistar and integrating agri-stack and ICR practices with AI systems. Okay, they are quite important and strengthening the foundations of growth. Infrastructure upre government focus karichi. Okay, government in infrastructure upre and my example say to lekhi deichi. Okay, just go through it. Then people centric development हवा दरकार गवर्नमेंट को उची people centric development हवा दरकार strong care ecosystem हमें देखले वर्तमान. ओके तापरे जो disabled माने अछंती सेमानन को पाई भी गवर्नमेंट किछि प्रोग्राम्स नहीं किया आछी. ओके these are the things, just go through it. And then trust based governance दरकार and ease of doing business. ओके आकु नै किछिटा programs government launch करिया को जाउची. ओके किछटा सुविधा प्रोवाइड करिया को जाउची foreigners मानन को as well as the people who are living outside. And this fiscal matters देखो तो फाइनेंस कमीशन आपण जानिथिबे फाइनेंस कमीशन कोन फाइनेंस कमीशन आपण जानिथिबे जो गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू अर्न करे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस जो हम बिगिनिंग को देखिले रेवेन्यू टैक्स सोर्सेस हे गेला नॉन टैक्स सोर्सेस हे गेला लोन हे गेला बुझ पाले जहां भी रेवेन्यू अर्न करे गवर्नमेंट केबे भी सब पैसा निजे पाकर रखे नहीं. गवर्नमेंट सपोज जदि 100 crores सपोज 100 कोटी टंका जदि अर्न करला डिफरेंट सोर्सेस रु ताले से 100 कोटी रु किछि परसेंट गवर्नमेंट स्टेट्स मानन को भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किंतु केते परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करिवो सेटा गवर्नमेंट को 16 फाइनेंस कमीशन को है. फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करे जे आपण जेतिकी भी आपण यूनियन गवर्नमेंट तो जेतिकी रेवेन्यू हेची जेतिकी रेवेन्यू कलेक्ट करछि तार एतिकी परसेंट गवर्नमेंट को स्टेट्स मानन को भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर देबा दरकार. So as per the 16th Finance Commission coaching, government जहाँ भी रिसीव करुची जहाँ भी रेवेन्यू अर्न करुची
तार 41% गवर्नमेंट को स्टेट्स मान भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर देवा दरकार एटा कहूँ कौन फाइनेंस कमिशन फाइन फाइनेंस कमिशन एटा कहूँ ओके तापर हूँ फिस्कल कंसोलिडेशन माने कौन देखो गवर्नमेंट रो डेट अच्छी आप जानी जे गवर्नमेंट प्रति वर्ष बोरो करे फाइन बोरो करे तो गवर्नमेंट रो डेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डेट भी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची तो गवर्नमेंट वर्तमान चेष्टा करूची किमिति डेट को रिड्यूस करा जाई परिबो हला तो सेटा को कुआ जाय कोन फिस्कल कंसोलिडेशन फिस्कल रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेट रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट प्रति वर्ष जेति की बोरो करूची बोरोइंग्स टा को भी कमेबो as well as debt को भी reduce करिवो that comes under the category of fiscal consolidation so debt to GDP ratio भी कमेवा को चेष्टा करूची हेलो and fiscal deficit माने होची government borrowing okay okay so this is all about budget the union budget okay 26-27 so just go through the PDF you will come to understand my examples with the बुझेची and thank you